नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणि रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। स्वामिनी भावगौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यतः कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं वपु स्वस्मिन्नुभयभावेन स्वेषाम् उभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्रीविठ्ठलेश्वर। सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवम् गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे ध्वन्मीलिताक्षं मृगमतितिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। आप सभी को आज के आज सत्र में स्वागत है। और अपन 2 हफ्ता के बाद मिल रहे हैं। 21 मार्च को अपन ने आखिरी क्लास करी थी और उसके बाद डोल को तो और पिछले हफ्ता मैंने एक दिन पहले ही वैक्सीन ली थी तो मेरे को थोड़ा सा बाको रिएक्शन हो रहा हो तो ऐसे फिर मैं वातिन नहीं ले पाया तो आज अपन भगवत कृपा से कर पा रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा था कि अब तक के जो अपन के हो चुका है वह आपके विषय में आप लोगों को कोई शंका या प्रश्न है तो वो अपन देखें पहले और फिर अपन आगे बढ़ें। यदि कोई शंका है तो आप लोग अपने हैंड रेस करो डिवाइस पे और अगर 2 मिनट के अंदर नहीं आ रही है कोई क्वेरी तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, जिकीशा बेन ने हाथ ऊपर कियो है। आप अपने को अनम्यूट करो और प्रश्न करो। સદૈન્ય પંચાંગ પ્રણામ જયશ્રી। हाँ, ગયા અઠવાડિયે આપણે જે પોસ્ટ મૂકેલું હતું એમાં ગુણગાન અને લીલાગાન અને લીલા પ્રમાણેના સ્વરૂપનો જ્ઞાન। તો ગુણગાન અને લીલાગાન એમાં હું જે પ્રમાણે સમજી છું કદાચ આપ વધારે સરસ રીતે મને સમજાવી શકશો। ગુણગાન એટલે આપ શ્રીના ધર્મનું જે 6 ધર્મો છે એનું ગાન। જ્યારે લીલા ગાનમાં પ્રભુએ જે લીલા કરી એ લીલાનું ગાન। તો એ લીલા ગાન કરીએ તો એમાં રહેલા ધર્મ કયા છે તે કેવી રીતે ખ્યાલ આવે કે લીલા ગાન કરવાથી ગુણગાન થાય છે? ગુણગાન હા લીલા ગાન કરવાથી પણ ગુણગાન તો થાય જ છે। એટલે એમાં રહેલા જે ધર્મ છે જે લીલામાં પ્રભુએ એનું કયું ધર્મ પ્રગટ થાય છે એ કેવી રીતે સમજણ પડે? એ તો ડિપેન્ડ્સ ઓન એટલે જે પદ ટુ પદ કે પછી જે લીલાનું છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે એમાં કયું ગુણ પ્રકટ થઈ રહ્યું છે। એ તો એટલે એક એક એનાથી ડિફરન્ટ થશે દરેકમાં। અને પછી જે સ્વરૂપ એમાં છે દરેક લીલા વખતે સ્વરૂપ અલગ છે। જેમ કે લીલા એનું
પણ એમાં લીલા રૂપના દરેક કીર્તનોમાં પ્રભુના નામ પણ એ પ્રમાણે જુદા હોય છે. ક્યાંક ગિરધર છે તો ક્યાંક મદન ગોપાલ છે તો ક્યાંક ગોવિંદ છે. તો એની સમજણ તો આપ શ્રી કૃપા કરો તો જ અમને. એમાં અઘરું શું છે, એટલે મને સમજાય નહીં કેટલું શું. પણ એટલે એ જે પ્રભુના જે નામ છે, જેમ કે ગિરધર કે ગોવિંદ કે મદન ગોપાલ, એ પણ એમના લીલા અનુરૂપ નામ હોય છે, સ્વરૂપ નામ, અને એને એમના ધર્મ પણ એ પ્રમાણેના જ પ્રગટ થાય છે. હા, એટલે ગિરધર નામ કીધું એટલે ગોવર્ધન ધારણ કર્યું એ સ્વરૂપ આપણને ધ્યાનમાં આવે છે. હા, હે ને? ગોવિંદ કીધું તો ગોવિંદ નામ ક્યારે પડ્યું? જ્યારે પ્રભુ પ્રમાણ ભંગ પછી જ્યારે ઇન્દ્ર અને પેલી કામધેનુ ગાય કે ત્યાં પ્રભુનું સન્માન કરવા માટે, પૂજન કરવા માટે આવ્યા, એ વખતે આપનું નામ ગોવિંદ પડ્યું. ગોવિંદ નો અર્થ થાય છે ગોવનો રક્ષક, ગૌઓના ઇન્દ્ર રાજા. અને ગોવિંદ નો અર્થ સંસ્કૃતના શબ્દોની અનુસાર ગો એ ઇન્દ્રિયોને પણ કહેવાય છે. તો ઇન્દ્રિયોની ઉપર ઇન્દ્રિયોના અધિષ્ઠાતા એમ પણ અર્થ થાય છે. એ વખતની લીલા, ગોવિંદ નામ એ વખતની લીલાનું અનુસરણ આપણને, એટલે લીલાનું અનુસંધાન આપણને કરાવે છે. એમાં આપનો વીર્ય, હા, આપણું વીર્ય ગુણદર્શક થાય છે, અથવા તો યશ ગુણદર્શક થાય છે. યશ, કારણ કે ગોવિંદ નામ પ્રખ્યાત થયું. આમાં યશ. બીજા બધા મ્યુટ રાખો તો સારું રહેશે, કારણ કે બીજા બોલી રહ્યા છે તો એનું અવાજ આવી રહ્યો છે. તો હા, એટલે એ રીતે લીલા વિશિષ્ટ માં ગુણ વિશિષ્ટ પણ આપણને દર્શન થાય છે એની સાથે સાથે. તો એનું ચિંતન કરવાની જરૂર છે કે આ વખતે આ લીલા છે તો આ લીલામાં કયું આપનું ગુણ પ્રકટ થઈ રહ્યું છે. તો આપણે એ ચિંતન કરીશું તો એનું આપણને મળશે ભગવત કૃપાથી. હેલો. હા જયશ્રી, મેં મ્યુટ કર્યું મારું. અચ્છા, તમારું મ્યુટ કર્યું. હા જયશ્રી. એમ છે એટલે કે દરેક લીલા વિશિષ્ટ ગુણ પણ હોય છે તે વખતનું. હા જયશ્રી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જયશ્રી. ઓકે, તો ચાલો પછી બીજું કોઈ હમણાં દેખાતું નથી, કોઈ હેન્ડ રેઝ થયું નથી, તો લેટ્સ. એક હાથ ઉપર થયું. હા, વૈભવી બેન બોલો. પંચાંગ પ્રણામ જયશ્રી. આપણે જે આજે પોસ્ટ પધરાવી હરિમૂર્તિ નું જે કહ્યું, હરિ કી મૂર્તિ, તો અત્યારે આપણે જે સ્વરૂપ અને લીલાનું જે સમજતા હતા, તો હરિની મૂર્તિ જે અહીંયા કહ્યું કે હરિની મૂર્તિનું સદા ધ્યાન કરવું જોઈએ, તો એ હરિમૂર્તિ એક કઈ રીતની મૂર્તિ, એટલે આપણે આ મૂર્તિને કઈ રીતના સમજીએ? હા, એની ઉપર આપણે આવીશું આજે. હમણાં એની કરવાની છે. જી 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 જી. આ 3-4 શ્લોકો છે જેની પર આજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે, તો એમાં સ્પષ્ટ થઈ જશે કે હરિમૂર્તિ એટલે કઈ. જી જી. ઓકે. એનીથિંગ એલ્સ? ચાલો, તો હમણાં બીજા કોઈ હેન્ડ રેઝ થયા નથી, તો આપણે આગળ વધીએ છીએ. હવે હું તમને શેર સ્ક્રીન કરી દઉં પહેલા. ઓકે, જો એવી રીતના છે. નનુ ગુણગાનમ રાગ તાનાદિ વશીકૃત ચિત્તતયા ન કાર્યમ નિરોધર્થાત્વાત ઇતિ તત્સિદ્ધ્યર્થમ ગીયમાન લીલા વિશિષ્ટ સ્વરૂપ ધ્યાનમ સાધનમ આહુ. હવે એમ કહે છે કે આપણે પ્રશ્ન એમ થાય છે કે ગાન કરવાનું કીધું, તો ગાનની અંદર તો मैं गुजराती में बोलने लग गया. तो गान करने की बात करी है, तो
गान को मतलब है राग तान इत्यादि वाक्य अंदर आ जाए, तो राग तान के ऊपर अपन को ध्यान देना चाहिए या फिर काय के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये प्रश्न है। तो वाक्य लिए आज्ञा कर रहे हैं कि निरोध के लिए अपन जब कर रहे हैं ये गुणगान, निरोधार्थ कर रहे हैं, तो निरोधार्थ करने में अगर अपन राग तान इत्यादि के ऊपर अपन ध्यान अधिक देंगे तो अपन निरोध राग तान में सिद्ध हो जाएगा। अपन को वामे निरोध सिद्ध नहीं करना है, निरोध सिद्ध होना है भगवत स्वरूप में। तो वाके लिए तत्सिद्ध्यर्थम गीयमान लीला विशिष्ट स्वरूप ध्यानम साधनम आहु। यसु जो गाई जा रही है वो लीला विशिष्ट स्वरूप को ध्यान अपने को करना चाहिए और वो साधन है अपने लिए। वाक्य द्वारा निरोध सिद्ध होगा। तो अपन अगर राग तान के ऊपर अधिक ध्यान देंगे तो फिर वो गायकी की तरफ चला जाएगा और वो वामे अपनो ध्यान बट जाएगा। लेकिन अपने यहाँ वाक्य ऊपर विशेष ध्यान न देके लीला विशिष्ट स्वरूप के ध्यान के ऊपर अधिक अपने को महत्व दिया जाए है, क्योंकि वही है जहाँ में अपने को निरोध सिद्ध होना चाहिए। ऐसा भाव मुख्य है, न कि राग तान। पर याको मतलब ये भी मत समझियो कि अपन चाय जैसे गालो ठाकुर जी के आगे। अपन देखो दो कारण है, दो वस्तुएं सिद्ध होवे हैं कीर्तन आदि से, गान आदि से। एक तो प्रभु को रिझावे हैं अपन, प्रभु को रिझावे के लिए अपन गान कर रहे हैं, और दूसरो अपनो निरोध सिद्ध होए वाक्य लिए अपन गान कर रहे हैं। तो ये दोनों पर्पस सॉल्व होने चाहिए। ये नहीं है कि चलो अपन को भाव के पक्ष के ऊपर ही अधिक ध्यान देना है, तो आपको मतलब ये है कि वो भाव अपने हृदय में स्फुरित होना चाहिए, अपने मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो भाव सहित निकलने चाहिए। तो वो कब होगा? जब वह लीला विशिष्ट स्वरूप को ध्यान अपने हृदय में होगा, तब होगा। और साथ ही साथ ये बात को भी ध्यान रखना है कि प्रभु को रिझाने हैं अपने को वो गान के द्वारा। तो चाहे जैसो भी गान नहीं होना चाहिए, बेसुरो चाहे कैसो भी गालियो, ऐसो भी नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ से अपने को प्रयत्न ऐसा करना चाहिए कि वो प्रभु के लायक हो। इतनों के अब अपन आगे ये श्लोकन की तरफ जाएं। हरिमूर्ति सदा ध्येया संकल्पादपि तत्र ही दर्शनम स्पर्शनम स्पष्टम तथा कृतिगति सदा श्रवणम कीर्तनम स्पष्टम पुत्रे कृष्ण प्रियरति पायोर्मलांश त्यागेन शेष भागम तनौ नयेत यस्य वा भगवत् कार्यम यदा स्पष्टम न दृश्यते तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चय। इतना ये 3 श्लोक एक साथ दिए हैं क्योंकि इन तीनों श्लोकों की आपस में संगति है, या कारण से ये तीनों श्लोक एक साथ दिए गए हैं। तो क्या कह रहे हैं? हरि मूर्ति ही, हरि की मूर्ति को सदा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि संकल्प मात्र से दर्शन स्पर्शन स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाए। ध्यान करने के संकल्प मात्र से दर्शन स्पर्शन आदि स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाए है। वैसे ही भक्त की कृति और गति भी सिद्ध हो रही है। ध्यान करवे सु श्रवण कीर्तन भी स्पष्टतया सिद्ध हुए हैं। दर्शनम स्पर्शनम स्पष्टम तथा कृतिगति सदा श्रवणम कीर्तनम स्पष्टम। फिर कह रहे हैं पुत्रे कृष्ण प्रिय रति, कृष्ण प्रेमी पुत्र में स्नेह करना चाहिए। पायो मलांश त्यागेन शेष भागम तनौ नयेत, पायु के द्वारा मल के अंश को त्याग करके शेष तन को भगवत सेवा में जोड़ देना चाहिए।
अभी मैं खाली शब्दार्थ कर रहा हूँ, के ऊपर अपन विचार करेंगे तब ये सब चीजें स्पष्ट होंगी। तो और फिर कह रहे हैं यस्य वा भगवत कार्यम यदा स्पष्टम न दृश्यते तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चय। यानी जा इंद्रिय को स्पष्ट रूप से भगवत सेवा भगवत कार्य में विनियोग दिखाई नहीं देते हो तो वाको विशेषतः निग्रह करना चाहिए, ये निश्चय है। ये तो हुआ वाको शब्दार्थ। अब विवेचन देखें अपन कि हरि के स्वरूप को सदा स्मरण कियो जानो चाहिए, ये अर्थ है सबसे पहले। तो शंका ये हो है कि जा स्वरूप को कभी देखो ही नहीं है, वहां को ध्यान कैसे किया जा सके? भाई कोई को देखो होवे तो आपके स्वरूप को अपन को ध्यान हो सके, पर यदि कोई को देखियो ही नहीं है तो वाह स्वरूप को ध्यान, जा स्वरूप को अपन ने दर्शन ही नहीं किया है, वाह स्वरूप को ध्यान कैसे किया जा सके? तो वह के समाधान के लिए कह रहे हैं कि श्लोक में दिया गया हरि शब्द के ऊपर ध्यान दें। ये हरि नाम आप सबको ध्यान में हो गई कि ये कब प्रसिद्ध भयो हरि नाम। भगवान को जो हरि नाम है वो गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग की अपन को याद दिलावे है। जब भी हरि शब्द आवे ना तब वो बात को ध्यान रखना, वो प्रसंग अपने को याद आना चाहिए। जैसे गोविंद शब्द अभी बात हुई कि गोविंद नाम आवे तो अपने को इंद्रमान भंग को स्मरण होवे है, वैसे हरि नाम आवे है तब अपने को गजेंद्र मोक्ष को स्मरण होना चाहिए, क्योंकि वाही प्रसंग में गजेंद्र ने जा प्रकार वो कह रहे हैं, देखो हरि प्रभो मूर्ति स्वरूपम सदा ध्येया स्मरणीय इत्यर्थः ननु अदृष्ट रूपस्य कथम ध्यानम इत्याशंक्य तस्य अन्याशक्य मनोरथ पूर्ते सर्वथा निस्साधनस्य गजेन्द्रस्यैव रक्षार्थम भगवान आविर्भवति इति न दर्शने दौर्लभ्यम इति ज्ञापयितुम हरि इति। तो ये याद करो कि हरि नाम कब को रखा गया है? गजेंद्र के प्रसंग में भयो है। गजेंद्र कैसो तो वो निस्साधन हो, वो वाने जल में जैसे ही पैर रखो अपनो और वाई बखत ग्राह ने वाके पैर को पकड़ लियो, मगर ने वाके पैर को पकड़ लियो, वाने बहुत कोशिश करी, बहुत वाने प्रयत्न करे अपने आप को छुड़ावे के, पर वो छुड़ा नहीं सको और तब वाकू भगवान के स्वरूप को स्मरण हो आयो और वाह बखत वाने अपने सूंड सू वहां पे जो कमल उगे तो वो एक तोड़ो और ठाकुर जी को स्मरण करके स्तुति गाई, जाको अपन गजेंद्र मोक्ष की स्तुति कहना है, वो स्तुति गा के वाने वो चरण वो जो कमल है वो ठाकुर जी के चरणन में समर्पित कियो। तो बा बखत गजेंद्र जो है वो बिल्कुल निस्साधन हो गए हो, तो वाकू देख लिया हो तो वाने के मेरे प्रयत्न कछु काम नहीं आ रहे हैं, अब मेरी रक्षा तो केवल भगवान ही कर सके हैं। तो वा बखत भगवान वाके रक्षा के लिए वहां पे आविर्भूत है, न केवल गजेंद्र को ग्राह के पाश से छुड़ायो अपितु वा ग्राह को भी मोक्ष दिलवायो। वा बखत अपन ये कहवे हैं गजेंद्र मोक्ष, पर वहां पे मोक्ष जाको मोक्ष कहवे हैं वो तो वा ग्राह को भयो, और या की मुक्ति जरूर वाके पाश में सु भई गजेंद्र की, पर मोक्ष वहां पे वह ग्राह को भयो है। तो यहाँ पे गजेंद्र की रक्षा के लिए जैसे भगवान आविर्भूत हुए, तो ऐसे हरि को दर्शन होना ये दुर्लभ नहीं है, ये बताए के लिए यहाँ पे हरि शब्द दियो गए। ननु योग इव कल्पित मूर्तेरुपासनायाम इव संपादितात यस्तत् क्रिया विशेष प्रयुक्त मूर्तीनां ज्ञान इव सोपधान मूर्ति ध्यानम इहापि भविष्यति। प्रश्न उठो है यहाँ पे कि ओके अपन को ध्यान करना चाहिए, भगवान के स्वरूप को हरि के स्वरूप को ध्यान करना चाहिए, तो योग मार्ग में
जा प्रकार से एक कल्पित मूर्ति कोई उपासना की जाए है, एक कल्पना कर ली जाए एक मूर्ति की अपने दिमाग में, और वाक्य ऊपर ध्यान केंद्रित करके, और फिर वो वाक्य ऊपर मतलब मेडिटेट करना पड़े, तो वो वह प्रकार को अपने को करना चाहिए। कल्पित मूर्ति को ध्यान करना चाहिए, जैसे ज्ञान और योग में है सोपधान मूर्ति ही इहापि भविष्यति, तो क्या यहाँ पे भी वैसे ही अपने को कोई काल्पनिक मूर्ति को ध्यान करना चाहिए। तो इति आशंक्या आहु मूर्ति ही थी, तो वह शंका को दूर करने के लिए मूर्ति शब्द यहाँ पे दिया गया है। भक्त्याविर्भूत रूपस्य एव ध्यानम न तो अन्यथा भूतस्य इत्यर्थः। भगवान के ऐसे स्वरूप को ध्यान करना चाहिए जो भक्ति के द्वारा आविर्भूत भयो है, न कि अन्य कोई प्रकार से आविर्भूत हुआ स्वरूप। यहाँ पे हरि मूर्ति कही है, तो यहाँ हरि की मूर्ति भी कब प्रकट भई, हरि को स्वरूप भी कब प्रकट भयो। भक्ति सु जब भगवान गजेंद्र ने भक्ति सु जब भगवान को स्मरण कियो हतो, वह वक्त भक्ति के द्वारा वो आविर्भूत भयो हतो, तो वैसे ही स्वरूप को ध्यान करना चाहिए। अन्यथा कल्पिताकारत्व यथा कथंचित हरिर्ध्येय इत्येव वदेयु। अगर ऐसा ही हो तो कि कोई भी कल्पित प्रकार से भगवान की मूर्ति को, कोई भी एक मूर्ति को ध्यान कर लो तो ऐसे कहते, पर यहाँ खास करके हरि मूर्ति ही ध्येय आयो कही है, तो मूर्ति शब्द आयो है वासु अपने को ये ध्यान में आ रहे हैं कि ये भक्ति के द्वारा जो प्रकटित मूर्ति है, वो आविर्भूत मूर्ति है, आविर्भूत स्वरूप है, वह स्वरूप को ध्यान अपने को करना चाहिए। अब फिर एक और शब्द यहाँ पे दियो है ध्येय इति। हरि मूर्ति ही सदा ध्येया, ध्येयेति कृत्य प्रत्ययेन आवश्यकत्वं द्योतितम्। ध्येय शब्द है या में धी में कृत्य प्रत्यय लगा के ये शब्द बनो है ध्येय, यानी ध्यान करना चाहिए, ध्यान की आवश्यकता है। ये जहां भी कृत्य प्रत्यय लगे हैं वहां पे वो कार्य जो है, वो क्रिया जो है वो आवश्यक बन जाए। जैसे सेव्य शब्द है ना, कृष्ण सेवा सदा का कृष्ण एवं सदा सेव्य यूं कही, या कृष्ण सेवा सदा कार्या कही, तो कार्या शब्द में भी कृत्य प्रत्यय है, सेव्य शब्द में भी कृत्य प्रत्यय है, यानी वो कार्य आवश्यक है। ये अपने को पता चले जहां जहां कृत्य प्रत्यय लगे हैं। ये व्याकरण को रूल है कि जहां कृत्य प्रत्यय लगो वहां पे वाक क्रिया की आवश्यकता अपने को मालूम पड़े है। तो यहाँ पे भी ध्येय शब्द दिया गया है वासु, ये पता चले है कि ये आवश्यक है। हरि मूर्ति को ध्यान करना ये यहाँ पे आवश्यक क्रिया है। अब फिर कोई प्रश्न करे कि ननु ध्यान सहित गुणगाने किम भवति। अगर अपन ध्यान सहित गुणगान करेंगे, वाह लीला विशिष्ट स्वरूप को ध्यान करते हुए अपन जब गुणगान करेंगे तो वह क्या होएगा। किम भवति इत्याशंक्य तदवांतरम फलमाहुः संकल्पादपि इति। तो वाको अवांतर फल यानी कि वाको इंटरमीडियरी फल के बाद ध्यान सु एक अवांतर फल यानी कि एक इंटरमीडियरी अपने को एक फल प्राप्त हो, वाके बाद मुख्य फल तो निरोध है। तो वो मुख्य फल प्राप्त हो वाके पहले जो अपने को फल प्राप्त हो है वो जो है वो होगो अवांतर फल। तो वो बता रहे हैं वो अवांतर फल क्या है। दर्शनम स्पर्शनम स्पष्टम तथा कृति गति सदा। संकल्प करवे सु भी ध्यान तक की बात की दूर है, संकल्पादपि संकल्प सु भी ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे
कि संकल्प सु भी क्या होगा, ध्यानस्य का कथा, ध्यान तक की तो बात ही क्या है। अगर ध्यान को संकल्प भी कर लियो तो वाको भी फल मिल जाए। यतः संकल्पाद विचार मात्रादपि तत्र ध्यान विषय प्रभु स्वरूपे प्रादुर्भावात् भगवतो दर्शनम सर्वावयव अवलोकन रूपम। यानी ध्यान को विषय प्रभु बने, ये संकल्प भी अगर कर लियो अपन ने, एक वो संकल्प शुद्ध संकल्प होना चाहिए, अपनो बिल्कुल शुद्ध मन से किए गए संकल्प होना चाहिए, न कि कोई प्रकार के मतलब का के आकांक्षा के साथ में, कामना के साथ में संकल्प ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल ध्यान को संकल्प, को ध्यान करना है ठाकुर जी को, ऐसा संकल्प केवल। तो वो कह रहे हैं कि संकल्पाद विचार मात्रादपि तत्र ध्यान विषय प्रभु स्वरूपे प्रादुर्भावात्। वहां पे ध्यान केवल संकल्प भी कर लियो ना तो वहां प्रभु को प्रादुर्भाव हो जाएगा। वहां में दर्शनम यानी सर्व अवयवन को अवलोकन रूप जो दर्शन है अपने को, संपूर्ण अवयवन के दर्शन अपने को हो सके हैं। स्पर्शनम चरणादि तद रूपम, उनको ठाकुर जी के चरण को स्पर्श को अनुभव भी हो सके हैं। तथा कृति यानी भक्त शिरसी करांबुज धारणादि रूपा, भगवान की कृति भी अपने को अनुभूत हो सके है। भगवान के अपने श्रीमस्त अपने माथे पे ठाकुर जी के कर कमल को धरो जानो, स्पर्श होनो, ये भी अपने को अनुभूत हो सके है। गति विलास रूपा, भगवान के संग में विलास करनो, ये जो है कृति, ये गति भी, ये सारू एतत् सर्वम ध्यान पूर्वक गुणगानेन संकल्प मात्रात् प्रादुर्भूत भगवत स्वरूपे स्पष्टम अबाधिताम न तो अबाधितम न तो भ्रम प्रतीत्या। ये बात को भी यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं हरिराय जी कि वो केवल संकल्प मात्र से भी ये सारा कुछ दर्शन स्पर्शन कृति गति ये सब कुछ ध्यान पूर्वक गुणगान करवे के संकल्प मात्र से भगवान के प्रादुर्भूत होके वाको अनुभव स्पष्ट हो सके है। ये कोई भ्रम भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि अपन को भ्रम होवे लग जाए। न तो भ्रम प्रतीत्या अपितु स्पष्टम अबाधितम प्रतिक्षणम अनुभूत भवति इत्यर्थ। तो ये प्रतिक्षण को इन सबको अनुभव हो जावे है, ये अर्थ है। यानी आप सोचो कि ध्यान के द्वारा ये सब होवे है, पर यहाँ पे तो ध्यान को संकल्प कियो तो भी ये सब कुछ अनुभूत कियो जा सके है। इतना या के अंदर अपनी जो भक्ति शुद्ध होनो ये इतना आवश्यक है कि वो होएगी अगर शुद्ध, बिना कोई कामना वाली निष्काम भक्ति होएगी तो ये सब कुछ सिद्ध हो सके है केवल संकल्प मात्र से। अगर नहीं हो रहे है तो अपनी भक्ति में ही कोई कमी है। बाकी ठाकुर जी के, क्योंकि ठाकुर जी तो पुष्टि स्वरूप हैं, वो तो यहाँ कृपा करवे के लिए ही प्रकट भय हैं। वो तो कृपा करवे के लिए तैयार ही है, पर अपनी ही पात्रता नहीं है तो वहां में दोष ठाकुर जी को नहीं दे सके। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि संकल्प, केवल संकल्प भी कर लियो तो ये दर्शन स्पर्शन कृति गति सब कुछ अनुभूत की जा सके है तुरंत ही, वही क्षण। फिर सवाल उठा रहे हैं, शंका उठा रहे हैं कि ननु श्रुतानाम पुनः कीर्तनेन स्थिरीकृतानां गुणानां गानम संभवति इति तदर्थम श्रवण कीर्तनम आहुः श्रवण कीर्तनम इति। श्रुत जो जिन गुणन को अपन ने सुनियो होगो उनको पुनः कीर्तन करके स्थिरीकृत के, जैसे अपन ने पहले भी बात की थी कि ठाकुर जी को गान करनो, ठाकुर जी के गुणन को गान, पहले अपन सुने गुणन को, फिर उन गुणन को अपने मुख सु अपन गान करें,
जब वो अपन मुखसु गान करें हैं तो वो जो ध्वनि अपने मुंह से निकले है अपने मुखसु, वो पुनः जाके अपने कर्ण में प्रवेश हो गए हैं, तब जाके वो हृदय में स्थिर हो गए हैं। पहले कर्ण में गुणन को श्रवण हो गए है, फिर वो श्रवण गान के रूप में मुखसु बाहर निकले हैं, तो और वो जो ध्वनि है मुखसु बाहर निकली वही ध्वनि वाको पुनः कान श्रवण करे हैं, तब जाके वो हृदय में सीधे उतरे हैं। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि ननु श्रुता नाम पुनः कीर्तने न स्थिरीकृता नाम, पुनः कीर्तन के द्वारा वाकु स्थिर किए जाए, गुणा नाम गानम संभवती तदर्थम श्रवण कीर्तने आहु श्रवण कीर्तनमिति। वाके लिए अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम स्पष्टम, यानी उनको श्रवण कीर्तन भी स्पष्ट रूप से, श्रवण ही भगवद वाचका नाम पद वाक्या नाम शक्ति तात्पर्य निर्धार। श्रवण काय को कहेंगे, ऐसे ही श्रवण नहीं, परंतु भगवद वाचक जो पद वाक्य है, यानी भगवान को बतावे वाले, भगवान के स्वरूप को बतावे वाले, भगवान के गुणन को बतावे वाले जो वाक्य पद हैं, उनको शक्ति तात्पर्य निर्धार, यानी उन वाक्यन को, उन पदन को तात्पर्य काय में है, ये बात को निर्धार करके जब अपन सुने हैं, ऐसे ही कान में पड़ गए वो नहीं, जो सुनो है वाकु ध्यान से सुनो है, और वो सुने भय शब्दन को तात्पर्य क्या है वाक्य ऊपर भी अपन ने विचार कियो है, तो वो श्रवण कहलाएगा। ऐसे तो अपन बहुत कुछ श्रवण करते रहे दिन भर में, अपन कितनी बातें सुने हैं प्रपंच की भी और दुनिया की सारी बातें करते सुनते हुए, तो वो या श्रवण की गिनती में नहीं आ रहे हो। श्रवण की गिनती में क्या आएगा, जो भगवत वाचक पदन को, वाक्यन को शक्ति तात्पर्य निर्धार के साथ में अपन ने जब आपको सुनियो है कि या को अर्थ क्या है, या को तात्पर्य क्या है, ये अवधान के साथ में जब अपन सुने हैं, तो वाकु श्रवण के में तद अनुकीर्तनम, और वाके बाद वाको कीर्तन श्रुतस्य स्थैर्य सिद्धे पुनः पुनः सतः सर्वत्र कथनम। वाकी स्थिरता के लिए वाकु पुनः पुनः वाकु सर्वत्र कहना चाहिए। अपन ने भगवान के गुण सुने तो वो सुन के अपन को वाको कीर्तन भी बाकी सिद्धि के लिए हृदय में सिद्ध हो, जैसे बताया ना कि सुने हुए वाक्य को अपन अपने मुंह से कह के फिर वापिस सुने और वह अपने हृदय में स्थिर हो गए, तो वो स्थिरता हो गए वाक्य लिए वाकु पुनः पुनः बार बार गुणन को गान सर्वत्र कह जाना चाहिए, निसंकोच होके कहना चाहिए। एतद्वयमपि संकोचादिम अकृत्वा, संकोचादिकम अकृत्वा कर्तव्यम, या में कोई तरह को संकोच नहीं रखना चाहिए। श्रवण कीर्तन में संकोच कोई प्रकार को नहीं होना चाहिए, पुनः पुनः कहना चाहिए। अन्यथा अपन क्या होगा, अपन पुनः पुनः अगर नहीं कहेंगे तो क्या होगा, अन्यथा श्रवण कीर्तनयोर असंभावना विपरीत भावने स्याता। अगर अपन नहीं कहेंगे तो होगा ये कि अपन ने जो सुनियो है ना, वाके ऊपर अपन को असंभावना और विपरीत है, ऐसा हो सकेगा, डाउट्स आवे लग जाएंगे अपने को दिमाग में, है ऐसा हो सकेगा, नहीं ऐसा थोड़ी हो सके, हाँ ऐसा कैसे हो सके, या तरह के सब अपने को सवाल ठाकुर जी की लीला विश्व के संबंध में और ठाकुर के गुणन के संबंध में अपने दिमाग में उत्पन्न होने लग जाए, अगर अपन वाको पुनः पुनः गान ना करें तो। या सु निसंकोच होके पुनः पुनः गान करते रहना चाहिए। ये अपने दिमाग की कंडीशनिंग हुआ है, अपन या को बार बार सुने और बार बार कहें, तो ये अपने दिमाग की कंडीशनिंग के लिए जरूरी है। वाको स्थूणा खनन न्याय कहे ना जाको के खिल्ला को दीवार में ठोकनो हो, तो वाको एक बार हथौड़ा मारवे सु अंदर नहीं जाएगा, स्थिर नहीं होगा, वो बार बार हथौड़ा मारना पड़े। तो ऐसे ही भगवत गुणगान को भी बारंबार को पुनरावर्तन होते रहना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर असंभावना, विपरीत भावना, ये सारी होवे की संभावना पूरी रहे है।
अतएव उक्तम श्रीमदाचार्य ही भागवत तत्वदीपे सर्वथा तद्गुणालापम नामोच्चारणमेव वा सभायामपि कुर्वीत निर्भया निस्पृहास्ततः। आचार्य चरण ने भागवत तत्वदीप निबंध में ये बात कही है कि भगवान के सर्वथा गुणालापम, भगवान के गुणन को आलाप और नामोच्चारण दोनों ही सभा में भी निर्भय होकर करना चाहिए। निस्पृहस्तः, निस्पृह होके, यानी कि कोई भी प्रकार की कामना रखे बिना और निर्भय होके आपको करना चाहिए, तो वो फिर स्थिर होगी वो सब बातें। इति यानी गुणालाप इतना आवश्यक है, नामोच्चारण इतना आवश्यक है कि वाकु सभा में भी, भरी सभा में भी निर्भय होके, बिना कोई संकोच के और बिना कोई स्पृहा के, यानी कोई कामना के बिना नामोच्चारण और गुणन को आलाप करते रहना चाहिए। श्रोतृ सापेक्षम कीर्तनम तन निरपेक्षम गानमिति तयोर विवेक। कीर्तन और गान में क्या अंतर है, तो वो बता रहे हैं कि कीर्तन के लिए श्रोता सामने चाहिए, तो वाकु कीर्तन कहेंगे, और बिना कोई अपेक्षा के, बिना कोई की अपेक्षा के, बिना श्रोता, केवल स्वांत सुखाय जो किया जाए वो गान है। जो कोई श्रोता के लिए किया जाए, सुनने वालों सामने है, बाकी लिए किया जाए, तो वो कीर्तन कहलाएगा। और निरपेक्ष होके स्वांत सुखाय जो गाया जाए है वो गान किया जाएगा। अब आगे को फिर प्रश्न आवे है कि ननु काममयो अयम पुरुष इति श्रुते है। भाई श्रुति तो ऐसे कह रही है कि पुरुष जो है वो काममय होवे है, कोई भी कार्य बिना कामना के वो करे नहीं है। सर्वथा ध्याने संकल्पानंतरम यत्किंचित काम संभवात गुणगाने कीदृश काम कर्तव्य। क्योंकि कोई भी कार्य बिना कोई प्रयोजन के करे कि तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो कि भाई मैं ये क्यों करूं, ये प्रश्न आवे ही है अपने को। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि काममय अयम पुरुष, ये श्रुति कह रही है कि ये पुरुष को, यानी कि जीव को ये स्वभाव हो गए है कि कोई ना कोई कामना वाकु रहवे ही है। तो सर्वथा ध्याने संकल्पानंतरम यत्किंचित काम संभव, कुछ तो संकल्प किया है अपन ने ध्यान को, तो यत्किंचित थोड़ो ही सही, कुछ छोटो सा ही सही, पर काम की संभावना तो रहेगी ही गुणगान में। गुणगान के पीछे कोई तो प्रयोजन होगा। इति कीदृश काम कर्तव्य, तो हमको कौन सी प्रकार की कामना रख के गुणगान करना चाहिए, ये प्रश्न है। तो या को उत्तर दे रहे हैं ये 3 शब्दन में कि पुत्रे कृष्ण प्रिय रति, कृष्ण प्रिय, पुत्रे संकल्पोत्पन्ने कृष्णस्य सदानंद पुरुषोत्तमस्य अलौकिके सर्व परित्याग पूर्वक धर्मी स्वरूप मात्राभिलाष रूपे कामे रति ही प्रीति ही कार्य इत्यर्थ। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टेड अर्थ लियो है श्री हरिराय जी ने, या 3 शब्दन को, पुत्रे कृष्ण प्रिय रति को। आप ये देखो कि काम कहाँ उत्पन्न हो गए, मन में उत्पन्न हुए है काम। मन जो है पहले संकल्प करे है और संकल्प के बाद वाकु कामना हो गए। तो मन को संकल्प पुत्र भयो और संकल्प को पुत्र भयो काम है, तो मन को पौत्र हुआ ना काम। तो यहाँ पे कह रहे पुत्रे कृष्ण प्रिय रति, संकल्प तुमने कियो, भगवान के ध्यान को संकल्प तुमने कियो, तो वह संकल्प से जो उत्पन्न कामना है वो कैसी होनी चाहिए, वो बता रहे हैं कि संकल्प पुत्रे संकल्पोत्पन्ने कृष्णस्य सदानंद पुरुषोत्तमस्य अलौकिके सर्वत्याग पूर्वक धर्मी स्वरूप मात्राभिलाष रूपे कामे रति। तुमको
ऐसे काम में प्रीति होनी चाहिए कि जो काम तुमको सर्व परित्याग करने के लिए प्रेरित करे, यानी सब विषयन को परित्याग करने को प्रेरित करे और केवल धर्मी स्वरूप मात्र की अभिलाषा तुमको हो, यानी कृष्ण प्रिय, कृष्ण में ही प्रीति हो और हर प्रकार के दूसरी सब विषय हैं उनको परित्याग किया जाए, ऐसी प्रीति की कामना करनी चाहिए। यहाँ पे एक शब्द में कहें तो सर्वात्म भाव की में तुम्हारे को प्रीति होनी चाहिए, ये कहवे को यहाँ तात्पर्य है। क्योंकि जैसे गोपी जनन ने कही थी ना कि सब हम त्याग करके संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम प्राप्त, यानी हम कोई कामना के साथ में यहाँ पे नहीं आई हैं, हम तो सारी कामनाओं को त्याग करके, हम तो सारे विषयन को त्याग करके आपके चरण कमल को प्राप्त हुई है, यानी हम कोई सकाम नहीं आई हैं, हम तो सर्वात्म भाव वाली होके आपके पास आई हैं। तो अपने को भी वैसे ही सर्वात्म भाव की प्राप्ति की कामना होनी चाहिए। तो पुत्रे कृष्ण प्रिय रति को मतलब ये भयो कि संकल्प को जो पुत्र है काम, वो काम अलौकिक काम होना चाहिए। ऐसे अलौकिक काम में हमको प्रीति होनी चाहिए, ये यहाँ कहने को तात्पर्य है। जब वो कह रहे हैं कि पुत्रे कृष्ण प्रिय रति, तो वहां तात्पर्य ये है कि संकल्प को जो पुत्र है, मन में संकल्प उठे, संकल्प सु कामना हो गए, तो संकल्प को पुत्र कामना भयो, तो संकल्प को पुत्र यानी अलौकिक काम की अपने को आकांक्षा होनी चाहिए, वाकई अपने को कामना होनी चाहिए, अलौकिक काम की सर्वात्म भाव की प्राप्ति की कामना होनी चाहिए। जब अपन ध्यान करवे को संकल्प कर रहे हैं तो वह वक्त अपने को ये कामना रहनी चाहिए कि अपने को अलौकिक काम भाव की यानी कि सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो। इति धर्मी स्वरूप मात्राभिलाष रूपे कामे रति ही प्रीति ही कार्या इत्यर्थ। एतेन सर्वात्म भावनम सर्वदा कर्तव्यम इत्युक्तम भवति। यासु सर्वात्म भाव को भावना सर्वदा अपने को करनी, ये बात कही जा रही है। तस्य भाव्यमानस्य कामस्य शरीर परिवर्तन लक्षणम फलम आहु। वह जो काम की भावना अपने को, सर्वात्म भाव की भावना जो अपने को करनी है, तो वो सर्वात्म भाव की भावना से शरीर में कौन से परिवर्तन के लक्षण अपने को दिखाई हो देवे लग जाएंगे, वो आपको फल अपने को बता रहे हैं। पाय और मलांश त्यागेन शेष भागम तनव नयेत की तरह। तो भाई शरीर तो रहवे ही वालो है, सर्वात्म भाव की प्राप्ति भी हो जाएगी तो शरीर तो रहवे ही वालो है, शरीर की सारी क्रियाएं भी रहवे ही वाली हैं, पर वो सारी क्रियाएं कैसे अलौकिक हो जाएंगी, सारी लौकिक क्रियाएं भी कैसे अलौकिक हो जाएंगी, या को अपने को यहाँ पे दर्शन करा रहे हैं आचार्य चरण इन शब्दन के द्वारा। कौन से? पाय और मलांश त्यागेन शेष भागम तनव नयेत। अपनो जो अंग होवे है पायु, ये जो अपनो अंग होवे है वो मल त्याग के लिए होवे। पायु और उपस्थ ये दो जो अपने अंग हैं शरीर के, वो मल त्याग के लिए है। तो मल त्याग करवे को जो कार्य है वो भी कैसे अलौकिकता अपने को प्राप्त करा देवे है, वो यहाँ पे आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि पायो हो सर्व शरीरगत मलाधिष्ठानस्य स्वमलांश मात्रेण एव अखिल शरीर लौकिकता पादकस्य संबंधी यो मलांशो लौकिक विषय भोगजन्य तस्य सर्वात्म भाव प्राप्त भावने संत्यज्य सर्व विषयान इत्यादि वाक्ये सकारणस्य त्यागेन तनौ शरीरे सा अलौकिक काम रति ही वो है। यहाँ पे कह रहे हैं कि
मलांश को त्याग जब करे है शरीर, सब शरीर में जो सर्व शरीरगत मल अधिष्ठान से, अपने शरीर को जो सारो मल है ना, वो या पायु के द्वारा बाहर निकले हैं। तो वो जब पायु के द्वारा बाहर निकले हैं, तो जो मल जो है वो अपने शरीर को लौकिकता देवे है। तो वो मल को अंश जो है वो लौकिक विषय भोग जन्य जो मल है वाको त्याग करा देवे है। ये सर्वात्म भाव की भावना करवे सु वो जो है अपनो जो ऐसो जो अंग है जो जाको ठाकुर जी के सेवा में डायरेक्ट कोई उपयोग नहीं है, पर इनडायरेक्ट उपयोग ये है कि सारो अपने मल को त्याग करा के और अपने शरीर को शुद्ध बनावे है और वह भगवत सेवा के वह लायक बनावे है। ऐसो ये इनडायरेक्टली ये पायु नामक जो अंग है वो भी ठाकुर जी की सेवा में अपने को इनडायरेक्टली उपयोगी हुए है। तो इति अलौकिक काम रति शेष वाक्य द्वारा ऐसे सकारण त्याग करके वो भी सर्वात्म भाव की भावना करते हुए संत्यज्य सर्व विषयान इत्यादि वाक्य, जैसे गोपीजनन ने संत्यज्य सर्व विषयान इत्यादि कह के बताया तो कि हम सारे विषयन को त्याग करके आइए, ऐसे ही अपन भी सारे विषयन को त्याग करके सकारण उनको त्याग करके बाकी जो शरीर अपनो जो शुद्ध बनो है बाकी वजह से मलांश के त्याग के बाद जो अपनो शरीर शुद्ध बनो है, तो वो वाक्य द्वारा अलौकिक काम रति भगवत संबंध योग्यता पादकम नयति। तो वह प्रकार से मल के अंश को त्याग करके वाकु भगवत संबंध योग्यता प्राप्त करानी शरीर को, और फिर बाकी को जो शरीर है वाकु उपयोग ठाकुर जी की सेवा में करना चाहिए। तो ये सारा अपना जो लौकिकता जो अपनी है शरीर की वो सब भी दूर हो गए। अपन इस या प्रकार से अगर भावना करें तो अपना शरीर भी धीरे धीरे लौकिकता को त्याग करके अलौकिक बन जाएगा। अपन वाकु हर एक जो अवयव है शरीर के उन सबको भगवत सेवा में उपयोग विनियोग अपन जब करें, भले डायरेक्टली नहीं हो तो इनडायरेक्टली अपन उनको विनियोग, जैसे हमें बताया ऐसे ठाकुर जी की सेवा में उनको उपयोग होना चाहिए। पुत्र इति सामान्य पदम अस्य अर्थस्य अति गोप्यत्वेन परोक्षवाद सूचनाय। ये यहाँ पे एक पंक्ति मुख लगे यहाँ की पहले की यहाँ पे आ गई है वापस, जहाँ पुत्र कृष्ण प्रिय रति की बात हो रही है वहां की ये पंक्ति है कि पुत्र इति सामान्य पदमस्य अर्थस्य अति गोप्यत्वेन परोक्षवाद सूचना है। यहाँ पे पुत्र कह के अपन ने वहां पे जैसे समझो कि संकल्प को पुत्र जो काम है वो सामान्य अर्थ तो पुत्र को जो अपन लौकिक में अर्थ समझे हैं वही है, लेकिन यहाँ पे परोक्षवाद को सूचन किया गया है। इनडायरेक्टली एक विशेष काम भाव की प्राप्ति, अलौकिक काम भाव की प्राप्ति की बात को वहाँ पे सूचन किया जा रहा है। ऐसे यहाँ पे परोक्षवाद लिया गया है आचार्य चरण के द्वारा, यूं कह रहे हैं। तो वो एक पंक्ति यहाँ पे बीच में यहाँ की आ गई है, ऐसा लग रहा है, फिर मालूम नहीं कि हो भी सके ऐसा। तो ननु एतादृशस्यापि तादृशस्यापि सततम इति वाक्यात् दुस्संगादिना भावनाश संभवाद उपाय माहु यस्येति। अब यूं पूछ रहे हैं, प्रश्न ये आ रहा है कि एतादृशस्यापि जाने इतना प्रयत्न करके भावना करके सर्वात्म भाव की भावना इत्यादि करके और सारे अपने जो इंद्रियन को ठाकुर जी की हमें विनियोग में सेवा में विनियोग तो कियो है, तो भी कभी कभी ऐसा हो जाए जैसे कि भक्तिवर्धिनी ग्रंथ के अंदर कहा कि तादृश्यापि सततम गृहस्थानम विनाशकम, ऐसे जो
भक्त हों उनको घर में सतत रहनो भी उनके भाव को नाशक हो सके है, क्योंकि वहाँ दुस्संग की प्राप्ति हो सके है। तो वाई प्रकार से यहाँ पे भी कह रहे हैं कि इतनो सब करवे के बाद भी यदि दुस्संग प्राप्त हो गए हो तो वो भाव को नाश कर दे वो अपने। यासु अगली जो पंक्ति है वो यूं कह रहे हैं वहां में कि यस्य वा भगवत कार्यम यदा स्पष्टम न दृश्यते तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चय। यानी कि जो यस्य इति यस्य पुत्रादेर इंद्रियादेर वा, यदि अपने पुत्र आदि को या अपनी इंद्रिया आदि को, कोई विशेष इंद्रिया आदि को भगवत कार्य में, सेवा गुणगान आदि में स्पष्ट कोई विनियोग दिखाई नहीं दे रहा है, उल्टो प्रतिकूलता दिखाई दे रही हो, प्रातिकूल्य न दृश्यते शिक्षायाम अपि, बहुत दंड दियो जाए तो भी प्रतिकूलता अगर दिखाई दे रही है भगवत कार्य में, भगवत सेवा में, बाकी तो क्या करना चाहिए? तदा सती सामर्थ्ये तस्य विशेषेण भरणादिकम अकृत्वापि निग्रह कर्तव्य इत्यर्थ। कि यदि ऐसा हो रहा है कि वह दंड आदि दियो जाए तो भी भगवत सेवा में उनको विनियोग नहीं हो रहे है, मतलब अपने इंद्रिय आदि को या पुत्र आदि को भी, तो फिर वाको ये क्या करना चाहिए? निग्रह करना चाहिए, विशेष रूप से निग्रह करना चाहिए। यानी निग्रह करने को मतलब क्या है कि भरणादिकम अकृत्वापि निग्रह कर्तव्य इत्यर्थ। यानी वाको फिर भरण पोषण भी नहीं करना चाहिए, वाह इंद्रिय को भरण पोषण करना बंद कर दो, या वाह संबंध जो मतलब पुत्रादि हैं ऐसे अगर प्रतिकूल हो रहे हैं सेवा में, जैसे आचार्य चरण ने आज्ञा करी है कि भर्यादीर अनुकूलश्चेत विष्णु कार्याणि कार्यत उदासीने स्वयं कुर्यात प्रतिकूले गृहम त्यजेत। ये आज्ञा आचार्य चरण की है कि भार्या आदि पुत्र आदि भी वहाँ के अंदर आ गए कि यदि वो अनुकूल हैं तो उनसे भगवत सेवा करवानी चाहिए, और अगर वो उदासीन है, न्यूट्रल हैं, तो स्वयं करनी चाहिए, और अगर प्रतिकूल हैं तो फिर त्याग कर देना चाहिए घर को, ऐसे आगे कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है कि भरणादिकम अकृत्वा भी निग्रह कर्तव्य। यदि प्रतिकूलता दिखाई दे रही है तो उनको भरण पोषण करना बंद कर देना चाहिए और निग्रह करना चाहिए, क्योंकि क्या हो, या में कोई दोष नहीं है, ये बात भी आगे समझा रहे हैं कि अन्यथा सत्याशक्तौ तद अनुग्रहे अप्रतिषिद्धम अनुमतम भवति। यानी अगर देख रहे हो कि प्रतिकूल हो रहे हैं तो भी यदि अगर अपन चुप रहेंगे, आपको रोकेंगे नहीं, तो या को मतलब यही होगा कि अपन को अनुमति दे रहे हैं ऐसे करवे की। इति न्यायेन तद्रतौ पुत्रे कृष्ण प्रिय इत्यनेन विरोधापत्ति ही इत्यता। यासु अगर ऐसा करेंगे तो फिर पुत्रे कृष्ण प्रिय रथी, ये जो वाक्य दिया है वासु विरुद्ध अपन करवे जाएंगे। यासु ऐसो नहीं करनो इति निश्चय इति यूं कह रहे हैं। यासु ये बात निश्चय है कि या तो उनको भगवत सेवा में उनको विनियोग करो, अगर नहीं हो रहा है और बल्कि प्रतिकूल हो रहे हैं तो उनको निग्रह करो। इतना यहाँ पे कही है। अब थोड़ा सा बचो है तो अपन यहाँ पे आज रखें, ताकि इतनो ये जो अपन ने 3 श्लोक आज किए हैं उनके ऊपर आप लोग विचार कर लो, और अगर आपने कोई प्रश्न है तो उनको अपन देखें और फिर आगे को अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आज अपन यहाँ पे विराम लेना है, और मैं ये बंद करूँगा शेयर स्क्रीन, और मुख्य वाक्य ऊपर आ जाए अपन पेज पे, और आप लोगों को जो भी प्रश्न हो वो आप कर सको। हाँ, यहाँ पे कोई ने हाँ वैभवी बेन को हाथ ऊपर भयो है, और निहार भाई को बोलो। वैभवी बेन तमे पहला बोलो। જી જય જય પંચાંગ પ્રણામ જય જય શ્રી
આપણે જે બહુ સુંદર ગજેન્દ્ર મોક્ષની જે કહી અને જે હરિનું જે સ્વરૂપ એટલે કે હરિ જ્યાં એ રચના હતી એનું આપણે બહુ સુંદર સમજ્યા અને એની વિશેષતા એ જ કે અહીં જે ગજેન્દ્ર મોક્ષમાં જે પુષ્પ અર્પણ કર્યું હતું એટલે એ સ્વરૂપ ન થઈ અને મૂર્તિ જે ઠાકોરજીની મૂર્તિનું એટલે મને એવું સમજાયું કે એ અહીંયા એટલે આચાર્યજીએ એવી રીતના ઉલ્લેખ કર્યો છે સ્વરૂપ ન કહી એ મૂર્તિ સ્વરૂપ કહ્યું, એ મૂર્તિ રૂપ કહ્યું, કારણ કે જે ગીતાજીનો પણ મને શ્લોક યાદ આવ્યો 9મા અધ્યાયનો જે છે ને પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. હા, તો મને એ શ્લોક યાદ આવ્યો કે અહીં જે પણ આવી રીતના ગજેન્દ્ર મોક્ષમાં જે પુષ્પનું અર્પણ થયું માટે અહીં એટલે શું મારું આ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સાચું છે કે? સાચું છે, બિલકુલ સહી તમે વિચાર કર્યું અને આ જ એનો હેતુ છે કે શબ્દ મૂકવાનો ત્યાં કે મૂર્તિ શબ્દ જે મૂક્યું છે ત્યાં એનાથી આપણને તે સ્વરૂપ વ્યવસ્થિત આપણને એ ધ્યાનમાં આવે છે. હા, જી 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 જી. તો હા, અને નિહારભાઈ તમે શું કહેતા હતા? હા, જે આપના ચરણોમાં કોટાનું કોટી સાષ્ટાંગ દંડ પ્રણામ. આશીર્વાદ. જે ઠાકોરજીના કયા સ્વરૂપનું આપણે ધ્યાન ધરવું જોઈએ? કારણ કે ભાગવતજીમાં ઘણી બધી જગ્યાએ ઠાકોરજીના સ્વરૂપનું વર્ણન હોય, શિક્ષાપત્રમાં ઘણી બધી જગ્યાએ વર્ણન છે. તો પછી આપણા પુષ્ટ કરેલા લાલન હોય ઠાકોરજીનું હોય તો આપણે કયા સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરવું? એમાં કઈ પ્રેફરન્સ કે એવું? જો આચાર્ય તો શરૂઆતમાં એમ જ આજ્ઞા કરી છે કે સર્વદા સર્વભાવે ન ભજનીય વ્રજાધિપ. સર્વભાવો વડે આપણે કરવું જોઈએ. પછી મુખ્ય આપણું જે સ્વરૂપમાં અધિકાર હશે એ ધીમે ધીમે સ્ફુરિત થશે ઠાકોરજીની કૃપાથી. પછી આપણે જેનો જે સ્વરૂપની ઉપર આપણો અધિકાર હશે જે એ આપોઆપ સ્ફુરિત થશે, ઠાકોરજી આપણને સ્ફુરાવશે, પછી આપણે એની ઉપર ધ્યાન કરી શકીશું. બાકી આચાર્ય ચરણોએ તો આજ્ઞા કરી છે કે સર્વદા સર્વભાવેનો ભજનીય વ્રજાધિપ. વ્રજાધિપનું સ્વરૂપ કોઈ પણ હોય એટલે બ્રજના અધિપતિ એવા ઠાકોરજીના સ્વરૂપનું સદા આપણે સેવા કરવી જોઈએ એમ આજ્ઞા કરી છે. એટલે ધ્યાન આપણને એ જ નિસ્સાધન ફલાત્મા જે ઠાકોરજી છે એમનું ધ્યાન આપણે કરવું જોઈએ. તો એ નિસ્સાધનના ફલાત્મા તો વ્રજાધિપત છે, તો એ જ સ્વરૂપનું આપણે ધ્યાન કરવું જોઈએ. સેવા કરતી જી જી ધર્મ પ્રણામ. હા, આશીર્વાદ. જી જી. હા, બોલો બીનાબેન. સોરી એક મિનિટ, આમ બીનાબેન ને પૂછી લેવા દો પછી આપણે કહીએ. હા, પંચાંગ પ્રણામ. જયશ્રી, ખૂબ જ સુંદર આપશે સમજાવ્યું કે આપણા દેહના બધા અંગો વિશેનું પણ, અને કીર્તનમાં આપશે સમજાવ્યું કે આપણે સતત તમે એટલે એનું આવર્તન કહીએ કે આપણે બીજા સાથે તમે એનું ગુણગાન કરો, પણ આમ એવું વિરોધાભાસ મનમાં એવું થાય છે કે પ્રગટકીય રસ જાય એટલે તો પછી એકદમ નિરોધની અવસ્થાનું છે. કીર્તન ગાન એટલે એ કઈ આપણા મનના ભાવોનું નથી પ્રકટ કરવાનું, જે મુખ્ય જે આપણને જે અનુભવ થાય છે એ પ્રકટ નહીં કરવાનું છે. ઓકે, એટલે એ રીતે આપશે કે છે. ઓકે, ગુણગાન અને લીલા વિશિષ્ટ ગાન એ તો કરવાનું કોઈ એમાં. હા, એટલે આ તો આપણા મનના છે એ પ્રકટ નથી કરવાનું. ઓકે ઓકે ઓકે, ખૂબ સુંદર જયશ્રી. હા, કેતકી બેન, હવે તમે બોલો. દંડવત પ્રણામ. જે આપણે અહીંયા સમજાવ્યું કે મન જ્યારે સંકલ્પ કરે અને કે કોઈ પણ કામના વગર ધ્યાન કરવું જોઈએ, કે કોઈ પણ કામના વગર ગુણગાન કરવા જોઈએ. પણ જ્યારે કોઈ જીવ તો દોષોથી ભરેલો જ છે જે પણ જ્યારે એ કામના ઠાકોરજી રિલેટેડ જ હોય ત્યારે શું કરવું, અને એ નેચરલી એ ભાવના આવી જાય. જી, એ તો વાત કહી જ છે ને કે પુત્રે કૃષ્ણ પ્રિય રતિ, એ જે શબ્દનો અર્થ બતાવ્યો છે એમાં આચાર્ય હરિરાયજીએ તો એ જ વાત કરી છે ને કે કામના તો કંઈક આવી જ જાય છે. હા,
અને તો પછી કામના આવી જ હોવી જોઈએ કે ભગવત સ્વરૂપ એટલે આમાં ભગવાન પ્રત્યેનું જે આપણું સર્વાત્મ ભાવ છે એની પ્રાપ્તિ થવાની આપણને કામના થવી જોઈએ, એમાં રતિ રાખવી. જો કામના કરવી છે, કામના કંઈક તો આવે જ આપણે, એટલે એ કામના વગર તો કોઈ, એટલે જ તો કામમય એમ પુરુષ એમ કહ્યું છે શ્રુતિએ. તો આ તો લક્ષણ જ છે પુરુષનું, જીવનો તો સ્વભાવ જ છે કે કોઈ પણ કાર્ય કરે તો આપણે એમ કહીએ ને શ્વાસ લેવાનું છોડીને આપણે જે કંઈ પણ કરતા હોઈએ તો કંઈ ને કંઈ પ્રયોજન તો એની અંદર હોય જ છે. ઇવન શ્વાસ લેવામાં પણ પ્રયોજન તો છે જ ને જીવવાનું, પણ એ તો સહજ રીતે થાય છે. પણ બાકી આપણે જે કંઈ પણ કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ તો એમાં કંઈ ને કંઈ કામના તો આપણને હોય જ છે. તો કામના જ રાખવી છે, તો આ કામના રાખવી એ સર્વાત્મ ભાવનું ભાવન કરવું, તો એમાં કોઈ દોષ નથી. હા, જેને આપણે જે મનોરથ કહીએ કે મેરો મનોરથ છે કે પ્રભુને આમ. હા હા બસ. જી જી જી. જિગીશાબેન હાથ ઉપર કર્યા છે. હા, જય શ્રી. શ્રી આચાર્ય ચરણે તો જયારે પણ ઠાકોરજી સેવ્ય કરીને પધરાવ્યા ત્યારે એમ જ કીધું છે કે મેરો સર્વસ્વ ઠાકોર. તો એ સ્વરૂપ જ વ્રજાદીપ ના થયું કે જે વ્રજના આદિપતિ છે. એટલે જયારે આપણે ધ્યાન કરવાની વાત આવે ત્યારે આપણા માનસ પટ પર આપણું એ જ સેવ્ય સ્વરૂપ વિરાજે, એ પણ ધ્યાન જ કહેવાય. હા, ઓફ કોર્સ એ ધ્યાન જ કહેવાય. એટલે બીજા કોઈ સ્વરૂપની expectations or like try to imagine it, something else is not required. અહીંયા એ જ સ્વરૂપનું ધ્યાન થાય, એ જ અપેક્ષિત છે. હા, આ વિપુલ કઈ કહેવા માંગે છે? જે દંડવત પ્રણામ. હા, આશીર્વાદ. હા, ઇન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવાનું આપણે આમાં જણાવ્યું છે. તો ઘણી વખત એવું પણ હોય છે કે ઇન્દ્રિયોને આપણે પ્રભુ તરફ વાળવાની હોય છે. તો આમાં નિગ્રહ કરવાની તો કઈ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવાનો? એટલે જે ઇન્દ્રિયોનો વિનિયોગ ભગવત સેવામાં ડાયરેક્ટ કે ઇનડાયરેક્ટ નથી થઈ શકતો એનું નિગ્રહ, એને પોષણ આપવાનું બંધ કરો. બરોબર, એમ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ જે આનું ડિટેલિંગમાં જરા કદાચ. ફોર એક્ઝામ્પલ જેમ કે હવે પેટનું. હા, એમ છે કે ખાવાની ઈચ્છા, નવા નવા આ તે ખાવાનું આપણને બધું ઈચ્છા થતી હોય તો એમ વિચાર કરવું કે આ હવે આપણને ઈચ્છા થતી હોય થાય, એમાં કઈ વાંધો નથી, પણ એમ વિચાર કરવું કે આ પ્રભુ ઠાકોરજી આપણી પાસે માગી રહ્યા છે એમ કરીને આપણે ઠાકોરજીને માટે એમ કરીને આપણે વિચાર કરી શકીએ. પણ એ બધી વસ્તુઓ તો ઠાકોરજીને આરોગાવવા જેવી પણ ન હોય, ઘણી શું હોય તો એવી અનુભવવા જેવી ન હોય ને આપણા જીભ માટે જ આપણે કરતા હોઈએ તો પછી એનું નિગ્રહ કરો. એમાં મન પછી દોડાવવું નહીં જોઈએ. હા, એ મને એક્ઝોટિક બધી જે આપણે દુનિયામાં ખાતા હોય, આ પીઝા છે, સુશી છે ને આ બધું સાંભળીને સિઝલર છે ને બધું એવું બધું, હા હા આપણું મન લલચાય એના ઉપર. એ કઈ ઠાકોરજીને બધું એ બધી વસ્તુઓ તો ધરવા જેવી હોય નહીં, મતલબ પછી આપણે એનું નિગ્રહ કરવો જોઈએ. એની પાછળ એનું પોષણ કરવા નહીં દોડવું કે હા હા કરી લઉં એટલે મારું મન પાછું સેવામાં લાગશે, એવું કઈ થવાનું નથી. બરોબર. એમ કે હા આપણે જીભ માટે આપણું મન દોડતું હોય તો એને શાંત કરી દેવાનું, એટલે જેથી શાંત કરી દે. એ કોઈ દિવસ એવી રીતે શાંત થતું નથી. એટલે એનું નિગ્રહ જ કરવું વધારે જરૂરી શ્રેયસ્કર છે. હા, હાજી, ધન્યવાદ, પ્રણામ છે. હા, આશીર્વાદ. હવે બીજો કોઈ? હા, નિહારભાઈ બોલો.
હા જે છે અલૌકિક કામ કે મનોરથ હોય તો એમાં આપણે એવું વિચારવું જોઈએ કે એમાં ઠાકોરજીનું સુખ છે કે આપણું સુખ છે કે એનાથી ઠાકોરજીને શ્રમ પડે છે કે એવું વિચારવું જોઈએ પુષ્ટિ માર્ગ? ઓફકોર્સ એ તો વિચાર કરવું જ જોઈએ કે જે કંઈ પણ મનોરથ આપણા મગજમાં આવતો હોય, મનમાં આવતા હોય, તો એ મનોરથને પણ તોલીને જોવું જોઈએ કે આ મનોરથથી ઠાકોરજીને સુખ થશે કે કેવલ મારા સુખ માટે છે. જી 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 જી. એ પણ આપણે તોલીને જોવું જોઈએ. એમાં ઠાકોરજીનું સુખ જણાય તો આપણે એ કાર્ય કરવું જોઈએ, અથવા નહીં હોય તો પછી આપણે એ નહીં કરવું જોઈએ, એની પાછળ નહીં લાગવું જોઈએ. જી જી દંડ પ્રણામ જી. હા, આશીર્વાદ. સો ધેટ્સ ઇટ. આપણે આજે અહીં રાખીએ. હજી એક હાથ ઉપર છે. હા, વૈભવીબેન બોલો. હા, પંચાંગ પ્રણામ જય શ્રી. એક પ્રશ્ન એવો મને મનમાં આવ્યો કે ગોપિકાનું જ્યારે વર્ણન આવ્યું તો ગોપિકાઓ ઠાકોરજીને ગુણગાનથી જ ભજતા હતા. અન્ય તો એમને જે પણ ભાવ જે હતો એ બધો, એટલે જે સ્વરૂપ ભાવ કહીએ કે જે પણ, એ બધું તો હૃદયમાં હતું અને કેવલ ગુણગાનથી જ એમને ઠાકોરજીનું ભજન કર્યું. તો એનું આપણે અહીંયા રિલેશન, જે સ્વરૂપની જે આપણે ડેફિનેશન સમજવી હોય તો કઈ રીતના અહીંયા આપણે સમજી શકીએ કે આ બધી જે ઇન્દ્રિયોને બધું એમને ઠાકોરજીમાં અર્પણ કરી દીધું, એ બી ગુણગાન દ્વારા જ અર્પણ કરી દીધું? સમજો નહીં. હા, એટલે મને એવું કે ગોપિકાઓએ તો બધું ઠાકોરજીને જે પણ ભાવથી ભજ્યા એ કેવલ એમનો મુખ્ય ગુણગાનનો ભાવ હતો કે ગુણગાનથી ઠાકોરજીને એ બધી રીતના ઠાકોરજીના સુખનો વિચાર કરી, બધી ઇન્દ્રિયો પણ એમને ઠાકોરજીમાં પોરવી દીધી અને કેવલ ગુણગાનથી જ એ ઠાકોરજીને ભજન કરી રહ્યા હતા. તો પ્રશ્ન મને એવો થાય કે અહીં આપણે જે દ્વિતીય, મને શ્લોક યાદ નથી અત્યારે, પણ જે 18મો જે શ્લોક તો જેમાં કહ્યું કે કૃષ્ણ હરી પછીની લાઈન વાળો જે શ્લોક હતો, જે હું શ્લોક ભૂલી ગઈ. શ્રવણમ કીર્તનમ સ્પષ્ટમ પુત્રે કૃષ્ણ પ્રિય રતિ. હા, પુત્રે કૃષ્ણ પ્રિય રતિ. આજે અહીં તો એને આપણે કઈ રીતના અહીંયા રિલેશન કરવું જોઈએ જે શ્રી, કે આપણે અહીંયા ગોપિકાઓએ કઈ રીતના વર્ણન કર્યું હશે કે? હા, તો એની જ વાત છે ને. અહીંયા હરિરાયજી એ જ વાત કરી રહ્યા છે ને કે પુત્રે કૃષ્ણ પ્રિય રતિમાં આપણે શરૂઆતનું ભાવનું ભાવન કરવું જોઈએ. એટલે ગોપીજનોએ જે પ્રકારનું શરૂઆતનું ભાવ હતું એમને કે પોતાનો, એટલે ઠાકુર પોતાનો દેહ, આત્મા વગેરેને ભૂલીને એ સ્થાને ભગવાનને મૂક્યા. જેવી રીતે અહમતા, આપણો અહમ ભાવ શેમાં હોય છે? આપણી દેહમાં હોય છે, આપણી ઇન્દ્રિયોમાં હોય છે. પણ એમનો ભાવ જે છે એ જેવી રીતે ઠાકુરજી, જેમ કે ગોપી ગીતની અંદર આવે છે કે આપ જ્યારે વનમાં પધારો છો તો આપના ચરણમાં જે કાંટા વગેરે વાગતા હશે એનું અમને દુઃખ થાય છે અહીં. એટલે એમનો એટલો બધો એ ભાવ એટલો બધો એ છે કે ઠાકુરજીના સ્વરૂપ, ઠાકુરજીને જે કંઈ પણ શ્રમ પહોંચી રહ્યો છે એનું ચિંતન એમને મગજમાં થઈ રહ્યું છે. એટલે આને કહેવાય સર્વાત્મ ભાવ, કે ઠાકુરજીના જ, એટલે એમ પોતાનો અસ્તિત્વ એ ભૂલીને એ ઠાકુરજીમાં એ રમમાણ થઈ ગયા છે. કે એ જ અસ્તિત્વ પોતાનું માની બેઠા છે કે હું જ કૃષ્ણ છું અને જે કૃષ્ણને થઈ રહ્યું છે એ મને થઈ રહ્યું છે. એમાં પણ ખાસ કરીને જો કંઈ શ્રમ વગેરે પહોંચી રહ્યું છે તો એ મને જ પહોંચી રહ્યું છે એવો અનુભવ થવો. ઓહો, ઠાકુરજીને દુખતું હશે એમ નહીં, પણ એ જાણે કે મારું જ દેહ છે અને એ જે થઈ રહ્યું છે એ મને થઈ રહ્યું છે, એવો ભાવ એમને થતો હતો. આ શરૂઆતનો ભાવ છે. હા જી, ખૂબ સુંદર. એવા ભાવની પ્રાપ્તિ આપણને થાય એવી આપણે ભાવના કરવી જોઈએ, એમ કહેવાનો તાત્પર્ય છે. જી. પંચાંગ પ્રણામ. જે ખૂબ સુંદર.
तो चलो આપણે હવે अब यहाँ पे अपन रखें अपन ये काके आश्रय को पद लेवा दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो श्री वल्लभ दृढ़ इन चरणन केरो साधन और नहीं या कली में जासू होए निवेद सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। अब अपन अगले शनिवार को मिलेंगे, तब तक के लिए विजय श्री जय जय आपना चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय जय दंडवत प्रणाम।